Morning, students, we have already discussed about sets. Set, a well-defined collection of objects, is called sets, and these objects are called elements or members of the set. And any symbol for elements, this is belongs to this one symbol. For example, if you define the set of all the fruits found in my refrigerator, then apple and orange would be the element or member of that set. Sets are usually denoted by capital letters like A, P, S, etc. And elements of the set are usually denoted by small letters, small a, p, t, u, etc. For example, A is a set always written in curly bracket in which small letters are given A, B, D, 2, 4, etc. So this is the example of a set. And we have already learned about how to represent these sets. Very first, that is verbal description. Verbal description means to say कि any word describing what is included in a set. For example, set M is the set of months that start with the letter J. तो इस टाइप से आपने उसको डिस्क्राइब कर दिया ओनली. तो जे से स्टार्ट होने वाले लेटर्स मंथ्स कौन से हुए? जनवरी, जून, जुलाई. दैट मीन्स अगर हम इन्हीं को एज अ कोमास और ब्रेसिस के अंदर रख देते हैं, ठीक है, यानी फर्स्ट एलिमेंट फिर कोमा, सेकेंड एलिमेंट, देन इट बिकम्स अ रोस्टर फॉर्म. नेक्स्ट इज अ सेट बिल्डर नोटेशन. Set builder notation is frequently used in the algebra. For example, we will write here m equals to x such that x is a month of the year and x starts with the letter J. तो यहाँ से हमें पता लग गया कि मंथ ऑफ द ईयर लेना है हमने, और वो लेना है जो स्टार्ट कहाँ से होती हो? जे से होती हो. दैट मीन्स जनवरी, जून, जुलाई. This is the representation of sets that we have already discussed in previous video. Now types of sets. Very first, that is the empty set. Next, finite and infinite sets, equal sets, subset, power set, singleton set and universal set. First of all, we will discuss empty set. Empty, as the name said, खाली means कोई element नहीं है. So a set which doesn't contains any element is called empty set, या फिर null set या फिर void set, and it is denoted by the symbol phi. This one, या फिर curly bracket with no element. For example, let R be any set equals to x such that x lies between 1 to 2 and x is a natural number. क्या 1 और 2 के in between कोई natural number लाई करता है? नहीं करता. So this set is called empty set. Next is finite and infinite sets. Finite means to say countable number of elements, means a set which is empty, या तो वो खाली हो, उसे भी हम बता सकते हैं कि इसमें 0 number of elements हैं, और consist of a definite number of elements is called finite. Otherwise the set is called infinite. For example, K be the set of days of the week. तो set of days यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. तो 7 हो गए, काउंट कर सकते हैं हम. सो K is finite. And let R be the set of points on a line. अब एक लाइन के ऊपर आपके पास कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं. सपोज दिस इज़ अ लाइन
तो इस लाइन के ऊपर अनलिमिटेड पॉइंट्स हैं. We can't count the points on the line. So this set is known as a infinite set. Next, equal sets. Equal sets. Given two sets K and R are said to be equal if they have exactly the same element. Then we will write K equals to R. Otherwise the sets are said to be unequal, and we will write K not equals to R. For example, let K equals to 1, 2, 3, 4 and R is also equals to 1, 2, 3, 4. Their arrangement can be differ, means you can write here 2, 1, 4, 3 etc. Then K equals to R. That means these two sets are equal sets. Now what is the difference between equivalent set or equal set? Equivalent means to say कि number of elements in two sets are same, but elements चाहे कुछ भी हो. For example, A is a set containing all the vowels in English alphabet and B is a set of natural number less than or equals to 5. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 एलिमेंट्स ही B के अंदर है, 5 एलिमेंट्स ही A के अंदर है. सो यू कैन से दैट A and B आर इक्विवेलेंट सेट्स. If the sets have the same number of elements and even numbers are also same, numbers भी same हो, then both the sets are said to be equal. तो A सेट के अंदर A E I O U है, B सेट के अंदर भी A E I O U है, बट उनका अरेंजमेंट डिफर है. ओके, देन यू कैन से दैट दीज सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स. नेक्स्ट, सबसेट. A set R is said to be a subset of a set K if every element of R is also an element of K. यानी R का हर एलिमेंट अगर K के अंदर है, then you can say that R is a subset of K. For example, set of integers -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 up to so on. This is a subset of the set of real numbers. रियल नंबर्स के अंदर हमारे पास सारे नंबर्स हो गए, रैशनल भी इरेशनल भी. तो इंटीजर्स उसका क्या है, सिर्फ एक पार्ट है. ठीक है, देन यू कैन से दैट इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. सो डेफिनेशन, A is a subset of B means if any element X belongs to A, अगर वो X A के अंदर है तो उस X को B के अंदर भी होना पड़ेगा. अगर है ये तब सबसेट है, अदरवाइज सबसेट नहीं है. दिस मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ R is also an element of K. अब एलिमेंट्स हैं जो उसके सेट्स भी हो सकते हैं. कैसे? लेट ए बी एनी सेट इन विच 1, 2, ये तो देखो एलिमेंट्स हैं. अब देखो कर्ल ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एक सेट है 1, 3 और 5 का. ये भी जब आपके पास एक बाहर अलग से कर्ल ब्रैकेट के अंदर आ गया, तब ये भी इसके लिए क्या हो गया, एलिमेंट्स बन गया. 3 अलग से दिया हुआ है देखो, 4, 6, 8 ये भी एक सेट है, बट ये किसी एक अनदर सेट के अंदर है, तो ये क्या बन गया, हमारे पास एक एलिमेंट बन गया. सो ए इज़ अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स 1, 2, 3, अनदर एलिमेंट 1, 3, 5, अनदर एलिमेंट 4, 6, 8. Now B is a set containing 2 elements. First element is a set
containing 1 2 3 and another is a set containing elements 4 5 6. Here you can't say कि 2 belongs to, अगर सेपरेटली हम ये कहें कि 2 belongs to B तो 2 बिलोंग नहीं करता, लेकिन एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 दिस बिलोंग्स टू बी है, यानी पूरा का पूरा सेट है जो वो बिलोंग्स टू बी आता है आपके पास. नाउ सी इज़ अ सेट कंटेनिंग 5 1 3. अब 5 यानी कोई एलिमेंट नहीं है, तो 5 की जगह हम ओनली खाली ब्रैकेट्स भी डाल सकते हैं. तो खाली ब्रैकेट्स डाल लिए हमने 1 3. अब यहाँ हमारे पास हुआ यानी 5 बिलोंग्स टू सी, 1 बिलोंग्स टू सी, 3 बिलोंग्स टू सी. नाउ डी इज़ अ सेट कंटेनिंग द एलिमेंट 5. अब 5 यहाँ पे एक एलिमेंट के लिए एलिमेंट है, क्योंकि 5 को हमने एक ब्रैकेट्स के अंदर दे दिया. अगर ब्रैकेट के अंदर है तो ये एक एलिमेंट बन जाता है, ठीक है, यानी ब्रैकेट के अंदर एक खाली ब्रैकेट होगी. तो इट मीन्स डी इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट. इसके अंदर एलिमेंट है एक सिंगलटन एलिमेंट सेट, यानी सिंगल एलिमेंट है, दैट इज़ 5. नाउ सुपरसेट. Superset means to say this one. A is a superset of B. Means to say if every element in B is also in a A. That means जिस साइड आपके पास खुला मुंह है वो आपके पास बड़ा सेट है. तो छोटे सेट के सारे एलिमेंट्स अगर आपके पास बड़े में आ रहे हैं, then you can say that B is सबसेट ऑफ ए. बी तो उसका सबसेट है, यानी उसका एक सब्जेक्ट है, पार्ट है उसका एक. लेकिन इन अदर वर्ड्स हम कहें अगर ए इज़ सुपरसेट ऑफ बी. नाउ प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट दिस. ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ़ एवरी एलिमेंट इन ए इज़ ऑल्सो इन अ बी. मीन्स टू से ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, लेकिन ए और बी दोनों इक्वल नहीं है, यानी सारे के सारे नहीं है, कोई ना कोई एक आधा उसके अंदर छूट जाता है जो ए में है लेकिन बी में नहीं. नेक्स्ट इज प्रॉपर सुपरसेट. Proper superset. A is a proper superset of B if every element in B is also in a A. That means only this symbol. So for example, N is a subset of Z, yani natural numbers are subset of integers and integers are subset of rational numbers. Rational numbers are subset of real numbers. Now some results about subset कि every set is a subset of itself. That means A is a subset of A. तो जब हम सबसेट बनाने लगेंगे तो जो सेट आपको दिया हुआ है उस सेट को भी इंक्लूड करोगे आप. नेक्स्ट, एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. एम्प्टी यानी 5, तो 5 को भी आप हर एक का ही सबसेट लेके चलोगे. नाउ पावर सेट. Power set means to say the set of all subsets of a given set is called power set of that set. यानी उसके सारे सबसेट. अब collection of all subsets is called power set and it is denoted as P of that set. अब सपोज K के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 और 2, कर्ल ब्रैकेट आएगी यहाँ पर हमारे पास. सो P ऑफ K, देखो हमने अभी किया कि एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट है ही है, ठीक है, और इट सेल्फ भी सबसेट है, यानी 1 2 भी लेना है. तो उससे छोटे हमारे पास आए एक सिंगलटन यानी सिंगल 1 सिंगल 2 आपके पास. तो 5 1 2 1 2 these are the subset of the set containing elements 1 and 2.
देखो इस सेट के अंदर आपके पास 2 एलिमेंट्स थे, तो पावर सेट में यानी सबसेट उसके कितने बने 4, दैट मीन्स 2 रेज टू पावर 2। अब बी सेट है, बी सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3, तो इसके सबसेट बनाओगे आप, एक हुआ 5, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट 1 2 3, फिर डबल डबल 1 2 1 3 2 3, फिर आपके पास हो गए तीनों एलिमेंट्स 1 2 3। तो अब यहाँ कितने एलिमेंट्स बने हमारे पास 8 एलिमेंट्स, दैट मीन्स 2 रेज टू पावर 3। नेक्स्ट, A is a set containing a single element A, then power set of A, यानी एक तो 5 हमने उसका सबसेट लेना ही लेना है, एक उस खुद एलिमेंट को लेना ही लेना है, तो 2 रेज टू पावर 1, दैट मीन्स 2 एलिमेंट्स। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर 2 रेज टू पावर n, यानी if any set has n elements, then power set of A has 2 raised to power n elements, यानी उसके उतने सबसेट्स बनेंगे। नेक्स्ट, सिंगलटन सेट, एनी सेट विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल A is a set containing only single element 1. Next is universal set. Universal set is the set which contain all objects including itself. खुद को इंक्लूड करते हुए भी उसने सारे ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ रियल नंबर्स वुड बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल अदर सेट ऑफ नंबर्स एक्सक्लूडिंग नेगेटिव रूट। नेगेटिव रूट दैट मीन्स रूट ऑफ -1, रूट ऑफ -2, यानी इमेजनरी नंबर्स को एक्सक्लूड करके जो रिमेनिंग आपके पास रियल नंबर्स बनते हैं, ठीक है, तो रियल नंबर्स हैं यूनिवर्सल सेट किसके लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए, होल नंबर्स के लिए, रैशनल नंबर्स के लिए, इरेशनल नंबर्स के लिए। तो इन सब के लिए रियल नंबर्स क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। नाउ सबसेट ऑफ आर वही सेम, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, ठीक है, दीज आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। नाउ इंटरवल्स, इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ आर, ओपन इंटरवल, द इंटरवल डिनोटेड एज this bracket AB. A real numbers is an open interval means including all the elements between A and B. तो A और B के बीच में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे इंक्लूड करने हैं आपने, बट A और B खुद इंक्लूड नहीं करने। नेक्स्ट इज क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल दैट मीन्स दिस ब्रैकेट, okay, this means all the elements between A and B but including A and B, means A और B खुद भी आपने इंक्लूड करने हैं। सपोज आपको यहाँ पर 4 और 6 दिया हुआ है, तो 4 से लेके 6 तक के सारे एलिमेंट्स जिसमें 4 और 6 खुद भी इंक्लूडेड है। सो वेरी फर्स्ट टाइप दैट इज ओपन इंटरवल मीन्स x सच दैट x लाइज बिटवीन A एंड B, A और B यहाँ खुद इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट इज क्लोज्ड ब्रैकेट A एंड B मीन्स टू से A और B खुद भी इंक्लूडेड है, तभी देखो यहाँ पर हमने साथ में इक्वल भी लिया। ठीक है, आगे है आपके पास एक साइड क्लोज्ड एक साइड ओपन, तो जिस साइड क्लोज्ड है वहाँ हमने साथ में इक्वल भी ले लेना है, जिस साइड ओपन है वहाँ हमने ओनली लेस देन का सिंबल लिया। नेक्स्ट सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, यू कैन से इट ऑल्सो। ठीक है, ए बी, ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू बी। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। By this way you can solve all the questions from the exercise 1.2 and 1.3. Solve these questions and ask the problems if you faced any. Thank you and have a nice day.